अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. हर एक एंजल टीवी के दर्शकों जो इस कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सबके लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. ये कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ कार्यक्रम है। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. इसके उद्देश्य ये है कि आपको जानकारी दें और अंतिम समय के लिए तैयार करें। In the previous session, we were talking about 4 generations, पिछले सत्रों में हमने 4 पीढ़ियों के विषय में हमने देखा है and that you and I belong to the most powerful generation, the Jesus generation. आप और हम एक सामर्थ्य पीढ़ी के भाग हैं जो यीशु का पीढ़ी है। And in this generation, God wants you to step in the power of believing through prayer the impossible things. और इस पीढ़ी में परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना के ऐसे विश्वास में बढ़ें जो विश्वास करें कि असंभव संभव में हो। But what happens to some of us, this belief comes in most of the time. और हम में से बहुत लोगों के जीवन में देखते हैं कि ये विश्वास जब हमारे जीवन में आता है। Let us look at the Gospel of Mark chapter 8 verse 23 to 25. आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 23 से लेकर 24वें पद तक हम देखें। So he took the blind man by the hand and led him out of the town. And when he had spit on his eyes and put his hands on him, he asked him if he saw anything. And he looked up and said, I see men like trees walking. Then he put his hand on his eyes again and made him look up, and he was restored and saw everyone clearly. वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रख के और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, क्योंकि वह मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। Why did Jesus have to pray for this blind man twice? क्यों प्रभु यीशु मसीह के लिए इस अंधे व्यक्ति के लिए 2 बार प्रार्थना करना जरूरी हुआ? This was because of unbelief on the part of the blind man. और ये अंधे व्यक्ति की विश्वास की कमी की वजह से था। Let us continue with the story. Mark chapter 8 verse 26. हम जो इस कहानी को जारी रखेंगे मरकुस 8 अध्याय के 26 पद से। Then he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell anyone in the town. और उसने उसे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। Jesus gave him this order because Jesus knew his weakness. यीशु ने यह आदेश उस व्यक्ति को दिया हुआ था क्योंकि जानते हैं कि उसकी कमजोरी क्या है। As soon as the blind man, or no longer blind, went into the company of unbelievers, he could have lost his healing because of unbelief. और जैसे ही ये अंधा व्यक्ति, अभी तो अंधा है नहीं, अगर वो उन लोगों के बीच में जाता और फिर से उन लोगों से मिल जाता, शायद उसकी विश्वास कम हो जाता और फिर से अंधा हो जाता। Jesus told him, don't go back to that town. यीशु ने उसे आदेश दिया कि उस शहर में वापस मत जाओ। Jesus told him, don't tell anyone your experience in that town. और यीशु ने उसे आदेश दिया था उस शहर में अपने अनुभव को किसी को नहीं बताना। What was the significance of that town? उस शहर की महत्वता क्या था? That town was called Bethsaida. और उस शहर का नाम है बेथसैदा। It was a town where Jesus had mighty revival with signs and wonders.
और वो एक ऐसा नगर जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े चिन्ह और चमत्कार के साथ बेदारी ले आए। Yet the people refused to believe in Jesus. यद्यपि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए इनकार कर दिए। Now let us look in the Gospel of Matthew chapter 11 and read verse 20 to 24. आय हम जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 20 से लेके 24वें पद तक हम पढ़ें। Then he began to rebuke the cities in which most of his mighty works had been done, because they did not repent. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sodom, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say to you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. And you, Capernaum, who are exalted in heaven, will be brought down to Hades. For if the mighty works were done in you had been done in Sidon, it would have remained until that day. But I say to you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय कुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदै में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब से मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदै की दशा अधिक सहन योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सोदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सोदोम के दशा की दशा अधिक सहन योग्य होगी। Jesus taught in the town of Bethsaida, but they rejected his teaching. यीशु ने बेतसैदा में उन्होंने शिक्षाएं दी है, मगर लोगों ने उनकी शिक्षाओं को इनकार कर दिया। So Jesus prayed for the blind man outside the town. और इसीलिए यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के लिए शहर से बाहर उनके लिए प्रार्थना किया। The town of Bethsaida came under the curse of spiritual blindness and deafness. बेतसैदा नगर परमेश्वर की श्राप के अधीन हो गया, जो आत्मिक अंधापन और बहरेपन में। There will be no more light coming into that town. और उस शहर में और कोई रोशनी अभी आने वाला नहीं है। Jesus led the blind man out of the town. यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को उस नगर से बाहर ले आया। When God speaks to all of us and we don't listen or refuse to do it, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं और उसको हम ना सुनते और उसको इनकार करते हैं, then after a period of time, slowly spiritual blindness and spiritual deafness sets in. और धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मिक अंधापन और बहरापन आ जाता है। We become hard of hearing because we refuse to obey. हमें सुनने में कठिनाई हो जाती है क्योंकि हमने इनकार कर दिया सुनने के लिए। To break that blindness and deafness, we need to repent. और उस अंधापन और बहरेपन को तोड़ने के लिए हमें मन फिरना जरूरी है। Just like the blind man, we need a fresh start. और उस अंधे व्यक्ति के समान हमारे एक ताज़ी शुरुआत की जरूरत है। We need to have an ear to listen and a heart to obey the Lord Jesus. हमें सुनने के लिए कान और प्रभु यीशु मसीह की वचन की आज्ञाकारी होने वाले एक हृदय की जरूरत है। There may have been somewhere in our life a period of time when God was speaking to us and yet we refused to obey him. हो सकता हमारे जीवन में एक ऐसा समय रहा हो जहां पर प्रभु यीशु हमसे बात करते हैं और हमें उसे सुनने के लिए हम इनकार कर देते हैं। So God is saying, don't let blindness and deafness settle in your life because you don't want to obey God. और परमेश्वर कहते हैं कि हम अपने जीवन में उस अंधापन और बहरेपन आने ना दें, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इनकार कर दिए हैं। Only after we have repentance that we can have a stronger desire to hear
and obey the Lord. सिर्फ हम मन फिराने के बाद ही एक बलवंत इच्छा हमारे जीवन में आता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और आज्ञाकारी हों। Let's turn to the book of Isaiah, chapter 44, and read verse 3. आइए हम एशिया भविष्यवाणी की पुस्तक उसके 44वें अध्याय 3 पद को हम पढ़ें। For I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants, and my blessing on your offering. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। Let us also read Matthew chapter 5, verse 6. आइए जो है मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 6 पद को भी पढ़ें। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। It is the strong thirst and desire to obey the things of God that breaks the spirit of blindness and deafness. और ये बलवंत इच्छा है कि परमेश्वर की वचन को सुने और आज्ञाकारी हो, और वो ही आत्मिक अंधापन और बहरेपन को तोड़ सकता है। God is asking you right now to take this strong desire and thirst to obey His word. आज परमेश्वर आपको प्रेरित कर रहा है कि इस बलवंत निर्णय को लें कि हम इच्छा रखें और आज्ञाकारी होने पाएं परमेश्वर के वचन के लिए। A selective hearing is a brain function. एक चुनी हुई बातों को सुनना एक हमारे दिमाग के कार्य है। It is like hearing, but your thoughts are somewhere else. वो ऐसा है कि हम सुन तो रहे हैं मगर हमारे विचार कहीं और है। It is significant and important for all of us that we should act upon what we hear from the Lord. ये महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि हम जो परमेश्वर के वचन से सुनते हैं उसी पर हम कार्य करने पाएं। If God is important to you, then you will hear Him and obey Him. अगर परमेश्वर आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे तो आप जरूर उनको सुनेंगे और उनके लिए आज्ञाकारी होंगे। Is spending time waiting on God important for you? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना और उनकी आवाज को सुनना महत्वपूर्ण है? Then I encourage you to do it. नहीं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ ऐसे करने के लिए। God does talk to all of us in different ways, but we are not listening. परमेश्वर जरूर ली हर एक के साथ बात करते हैं मगर हम ही उन्हें सुनने में इनकार कर देते हैं। He could be talking to you now in sounds, in voices, in ideas, impressions in your heart, pictures, images and even feelings. हो सकता है परमेश्वर आपके साथ आवाजों में या जो है किसी स्वरों में या किसी स्वरूप के साथ या चित्रों के साथ किसी ना किसी तरीके से आपसे बात कर रहे होंगे। God is going to communicate to us through our soul, through our spirit and through our body. परमेश्वर हमसे हमारे प्राण, आत्मा और शरीर से वार्तालाप करते हैं। Let's turn to the book of Ephesians chapter 1 and read verse 17 to 19. हम जो इफिसियों की पत्री उसके 17 अध्याय से 19वें पद तक पढ़ेंगे। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of His calling and what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the workings of His mighty power. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दें और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितने महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। Just like the blind man who received his healing, God is saying, I will give each and every one of you spiritual revelation. ठीक उस अंधे व्यक्ति के समान जिसने चंगाई को पाया है, परमेश्वर हम सबसे कहते हैं कि हम सब के लिए भी परमेश्वर प्रकाशन को देंगे। So why will the Lord speak to you unless
you commit your life to serve Him. अगर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए समर्पण नहीं करते हैं तो क्यों आपसे बात करेंगे? Some of us have made a mistake and we have led others to believe that the one true God is not enough, that we need to accept human reasoning or common sense. हम में से कुछ लोगों ने ऐसे गलती की है कि हमने लोगों को अगुवाई दिया है कि सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करना ही काफी नहीं है, मगर हम अपने जीवन की उन ज्ञानों को भी जो जांच कर जानने पाए उसे भी स्वीकार करना है। We need to forget common sense and we need to use God's sense. हमें व्यवहारिक बुद्धि को भूलना है और परमेश्वर की बुद्धि को पाना है। In God's sense, the impossible is possible for you. परमेश्वर के तत्व से आपकी जो असंभव है उनके लिए संभव है। There is a remnant right now who are being prepared for the coming of our Lord Jesus Christ. हम में से कुछ ऐसे चुड़ाए के झुंड हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। The only requirement is to believe, just like the blind man. उसके लिए एकमात्र जरूरत यह है कि उस अंधे व्यक्ति के समान उस पर विश्वास करें। God always keeps His promise, and He's asking you, awake, my children, redeem the time. परमेश्वर जरूर अपने वायदे को वो पूरा करता है और वो हमसे कहते हैं कि जाग उठ मेरे संतान और अपने समय को मोल ले। Are you ready to respond to God appropriately? क्या आप परमेश्वर के लिए सही प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं? Let us turn to 2 Chronicles chapter 20 and read verse 21. आयम जो है दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 20वें अध्याय से उसकी 21वें पद को हम पढ़ेंगे। And when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of holiness. As they went out before the army, were saying, Praise the Lord, for His mercies endures forever. तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। In this story, the people of Israel were about to go into battle. और इस कहानी में देखते हैं कि इस्राएल अभी युद्ध में जाने वाले ही थे। They were not ready to fight. और वो तैयार नहीं थे लड़ने के लिए। They were not equipped to fight. वो तैयार नहीं किए गए, सक्षम नहीं है लड़ने के लिए। But God said to them, as you go into the battle, only say, Praise the Lord, for His mercies endures forever. तब परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था, जब युद्ध में जाओगे मात्र आप ऐसा कहना कि परमेश्वर की स्तुति हो और उसकी करुणा सदा की है। As they sang this praise and believed in their hearts, they had the victory. जब उन्होंने इस गीत को गाया और अपने विश्वास किया अपने हृदय में, तब उन्हें जीत मिला। So now you do the same thing. और इसीलिए आप भी ऐसे करिए। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस सत्र के अंत में आ पहुंचे हैं। I want you to start believing what God can do for you. मैं चाहता हूं कि जो परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं उस पर आप विश्वास करने लग जाएं। Forget about common sense. Have God's sense in your heart. व्यवहारिक तत्वों को आप भूल जाइए मगर परमेश्वरीय तत्व को पाइए। Thank you for watching this program. Until we meet again, God bless you all. इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। अगले समय मिलते तक परमेश्वर आपको आशीष दे।